فائر سیفٹی اقدامات مکمل نہ کرنے والی عمارتیں سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا فائر سیفٹی اور ہائیڈرنٹ سسٹم کی لازمی تنصیب ہوگی۔ فائر فائٹنگ کے تمام آلات فعال اور اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ تمام عمارتوں میں سیفٹی آلات کی مؤثر جانچ پڑتال کی جائے۔ کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ کمرشل مارکیٹ 30 دن کے اندر اپنے فائر ہائیڈرنٹس لگائیں۔ ریسکیو کا سب سے اہم کام لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ بوائلر اور سلنڈر کی انسپیکشن بہت ضروری ہے۔ جنوبی پنجاب میں کیمروں کے ذریعے اسپتالوں کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بڑے سرکاری اسپتالوں میں نصب کیمروں کو سیف سٹی کیمروں سے جوڑا جائے۔ ایمرجنسی اور OPD کے کیمروں کی سیف سٹی کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی۔ اس حوالے سے گوہر رحمان شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت پنجاب سرکاری ہسپتالوں میں نگرانی کا نظام مؤثر بنانے کے لیے متحرک۔ جنوبی پنجاب کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں نصب کیمروں کی نگرانی جدید انداز میں مؤثر بنانے کے لیے اقدامات مزید سخت کرنا شروع کر دیے۔ اب بڑے سرکاری ہسپتالوں میں پہلے سے نصب CCTV کیمروں کو بھی سیف سٹی کیمروں سے منسلک کیا جائے گا تاکہ مریضوں اور عملے اور ہسپتال کی سیکیورٹی کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔ 2 دن پہلے ہمیں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے انتظامیہ کو انٹیمیٹ کیا گیا کہ جو یہاں پہ ہمارے OPD اور ایمرجنسی میں جو سسٹم ہے CCTV کا، اس کو انٹیگریٹ کیا جائے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے، اس حوالے سے تاکہ جو مطلب لاہور میں جو بڑے جو انتظامیہ جو بیٹھی وہ جو مریضوں کا جو نظم و ضبط ہے اس پہ بھی نظر رکھ سکیں کہ کیا ایسے کام ہو رہا ہے، کیسے جو ہے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے ملتان صرافہ بازار کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باعث جولرز شدید پریشان ہیں، جبکہ شہری سونے کی خریداری سے تقریباً دستبردار ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف چاندی کی نسبتاً کم قیمت نے خریداروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہی ہے۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں سونے کی قیمتوں میں تیزی برقرار، خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 5,24,000 روپے تک پہنچ گیا، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 4,80,333 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 24 کیرات سونا 45,000 روپے فی گرام، جبکہ 22 کیرات سونا 41,100 روپے فی گرام ہو گیا۔ سنار حضرات کا کہنا ہے کہ وہ صبح دکانیں کھولتے ہیں اور شام تک خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ 2 سے 3 ماشے کی انگوٹھی بھی 1 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ لوگوں کی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تاریخ کی بلند ترین سطح پر گولڈ کا ریٹ چلا گیا اور عالم یہ ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں جن کا جولر سے کام وابستہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، اگر کوئی کسٹمر آتا بھی ہے، ایک نارمل ایک چیز ہوتی تھی بھئی انگوٹھی لینے کے لیے آ جاتا تھا، تو 1 لاکھ روپے 1.25 لاکھ 80,000 کی تو انگوٹھی ایک 2-3 ماشے کی جو ہے نا، لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی اور سینکڑوں جو اچھے کاریگر تھے، جو ہمارے جو لیبر تھی، وہ بے روزگار ہو گئی ہے۔ جولرز کے مطابق شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود سونے کا کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کئی دکانوں نے کاؤنٹر پر سونا سجانا بھی چھوڑ دیا ہے، جبکہ سونے سے وابستہ کاریگر بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ سونا پہنچ سے باہر ہونے پر شہریوں نے اب چاندی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ ملتان میں چاندی 17,000 روپے فی تولہ فروخت ہو رہی ہے، جس کے باعث چاندی کی دکانوں پر خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ تاہم بڑھتی طلب کے باعث چاندی کی نرخ بھی آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے سونا ہو گیا 5.25 لاکھ روپے تولہ، یہی وجہ ہے یہ چاندی ابھی بھی تقریباً غریب آدمی نہیں لے سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھ لو، یہ سارے بندے کوئی سیل کرنے آیا، کوئی لینے آیا، کوئی دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جمع پونجی لوگوں کے پاس تھا نا، سرمایہ کرے، انہوں نے اس میں انویسٹ کر دیا کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سونا تحفظ ہے ملک کے لیے، لیکن یہ چاندی جو چل رہی ہے یہ عالمی ریٹ کے حساب سے بلیک میں یہ بک رہی ہے۔ کاروباری افراد کے مطابق چاندی کی مانگ بڑھنے کے بعد بعض مقامات پر بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ملتان کی گولڈ مارکیٹ میں سناٹا اور چاندی کی دکانوں پر چہل پہل ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر قیمتوں میں تیزی برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں نہ صرف زیورات کی روایت بدلے گی بلکہ سرمایہ کاری کا انداز بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان میں LPG کی بڑھتی قیمت نے عوام کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنوری کے لیے LPG کی سرکاری قیمت 219 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں
320 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद है। महंगी गैस की वजह से घरेलू सारिफीन और रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशान हैं। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में सुई गैस की किल्लत के बायस शहरी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर, मगर नाजायज मुनाफाखोरी ने इस मुतबादिल ईंधन को भी अवाम की पहुंच से दूर कर दिया। एलपीजी की सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। इस सूरत हाल में हुकूमती रिलीफ के दावे बेअसर दिखाई देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि हमेशा एलपीजी खुद साख्ता कीमत पर फरोख्त हुई है, जिसका ज्यादा नुकसान हम रिक्शा वाले उठाते हैं। रिक्शे का किराया तक पूरा नहीं होता। गवर्नमेंट का रेट मेरा ख्याल 219 या 20 रुपए है, लेकिन गैस जो बिक रही है वो 300 रुपया 310 रुपए इस तरह तरीके से बिक रही है। जब हम लोग रश के ड्राइवर इकट्ठे हो गए जब दुकान पे जाते हैं कि जनाब ये क्या है, इतना फर्क क्यों है, वो तो कह रहे हैं हम 10 रुपए कमा रहे हैं। भाई किस तरह 10 रुपए कमा रहे हैं? वो कहते हैं जी आज का रेट, आज मैंने पता किया, वो कहते हैं आज का रेट केके और सीके का रेट है कोई 275 रुपए किलो। महंगी एलपीजी ने अवाम के घरेलू बजट को भी शदीद मुतासिर किया है। शहरी कहते हैं मजबूरी के तहत एलपीजी खरीदनी पड़ती है जो कुव्वत खरीद से बाहर है। गैस के बिल भरें या एलपीजी खरीदें। बात यह है कि जो घर के बिल हैं बहुत ज्यादा आते हैं, गैस आती नहीं है, टाइम उन्होंने गलत बनाया हुआ है। अगर दुकानों से गैस भरवाने के लिए जाएं तो वो उनके रेट हैवी हैं, बिल इतने ज्यादा आते हैं, गैस सही है नहीं, 2 नंबर गैस है, घर में भी इस्तेमाल सही तरह नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। दुकानदारों के मुताबिक प्लांट्स सरकारी रेट पर एलपीजी फ्राहम नहीं कर रहे। उन्हें 271 रुपए फी किलो तक गैस खरीदना पड़ती है, जिसमें किराया, बिजली और मुनाफा शामिल करके कीमत बढ़ाना मजबूरी बन जाती है। हुकूमत और ओगरा से मुतालबा है कि प्लांट माफिया को रेगुलेट करके अवाम को हकीकी रिलीफ फ्राहम किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई से तंग अवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्तान में आटे की कीमत कम हो गई। बाजार में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता हो गया, जबकि फी किलो आटा 10 रुपए सस्ता होकर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस पर मजीद तफसीलात फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। बढ़ती महंगाई से तंग आवाम के लिए रिलीफ। आटे की बढ़ती कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद 15 किलो आटे का थैला 1950 से कम होकर 1800 रुपए का हो गया। फी किलो भी आटा 10 रुपए सस्ता होकर 120 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं आटे के बोरान का मामला मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो इंतजामिया हरकत में आई और महंगा आटा फरोख्त करने वालों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी, जिससे आटे का रेट कंट्रोल होकर 10 रुपए फी किलो कम हो गया। एक्समिन रेट है 1800। अभी मार्केट के अंदर जब वो आएगा, कैरेज वगैरह पड़ेगा तो 1840 1850 रुपए में दस्तयाब होगा। इससे पहले वही थैला 2000 रुपए का सेल हो रहा था। तो माह रमज़ान आने वाला है तो इंतज़ामिया को चाहिए आवाम की आसानी के लिए उसमें बैलेंस को, उसका चेक एंड बैलेंस को मैनेज करे ताकि आटे के रेट में कमी वाक़या हो सके। शहरी का कहना था कि 120 रुपए फी किलो आटा भी महंगा है। माह रमजान आने वाला है, इंतजामिया आटे की कीमत मजीद कम करे। पकड़ दकड़ के हवाले से ही 10 रुपए जो रेट हुआ है आटे में वो बहुत कमी हुई है, तो हमें खुशी है, लेकिन हम इस पे और भी मजीद कमी का आपसे मुतालबा करते हैं क्योंकि आगे माह रमजान आने वाला है। तो 2 वक्त की रोटी पूरा करना गरीब के लिए बहुत मुश्किल बात है आजकल के दौर में ना। तो ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को ना कि इसमें और मजीद कमी लेके आए ताकि हम अपनी सैलरी बेस के ऊपर इसको ना मैनेज कर सके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत को 90 रुपए फी किलो तक लाया जाए ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। उधर हारूनाबाद में सस्ते आटे की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने फौरी नोटिस लेकर शहर में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बना दी है। इस पर शर्जील हाशिर की रिपोर्ट देखिए। हारूनाबाद में आटे के बहरान का डीसी बहावल नगर ने नोटिस ले लिया। पीआर सेंटर पर सस्ते आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अब्दुल जब्बार का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी बना दिया है। फ्लोर मिल्स को उनकी डिमांड के मुताबिक गंदम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारे फ्लोर मिल को सरकारी कोटा इशू हुआ तो ये आटा मार्केट में शॉप से सप्लाई किया जा रहा है और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि गरीब की सस्ता आटा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में मिलने पर शहरी खुश हैं। उनका कहना है कि सस्ते आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर वजीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं। हारूनाबाद के शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि शहर में सस्ते आटे की मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही,
हरूनाबाद। मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों में ताख़ीर से मुस्तहिक ख़वातीन परेशान हैं। दफातर में सहूलियात और रहनुमाई का भी फुकदान है। इंदराज के कई माह गुजरने के बावजूद ख़वातीन को माली इमदाद ना मिल सकी। इस पर सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मुस्तहिक ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद ना मिलने पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ख़वातीन का कहना है कि उन्होंने कई माह कबल प्रोग्राम में इंदराज मुकम्मल करवाया, मगर ताहाल एक भी किस्त मौसूल नहीं हुई। 8 माह हो गया बेटा, जब भी आते हैं तो हमें ऐसे कहते हैं अभी आप जाओ, जगह नहीं है। अभी हम गए तो बाबा खड़ा है, उसने धक्के दे के बाहर निकाला, कहता नहीं आप यानी कि इंदराज नहीं हो रहा। इंदराज किसी ने भी नहीं किया। 7-8 माह हम किराए पे रहते हैं, हम बार बार आते हैं किराया भर के, फिर हमें जाना पड़ता है। मुतासरा ख़वातीन के मुताबिक रकम के हसूल के लिए कई बार मुतल्लिका दफातर के चक्कर लगाए हैं, लेकिन ना तो कोई वाज़ेह जवाब दिया गया और ना ही मसला हल किया गया। दफातर में रहनुमाई के लिए अमला भी नजर नहीं आता। किस्त नहीं मिली, बच्चों का वजीफा भी मिलता था, वो अब खत्म हो गए हैं। अब दोबारा दराज कराने आई हूँ तो कहते हैं ईद के बाद आना। हाँ, मैंने काफी चक्कर लगाए हैं, बाबे ने धक्के दिए, कहते जाओ जाओ जाओ। अभी ये किस्त भी आई हुई है, देते ही नहीं है, कहते हैं इंदराज होगा फिर देंगे। हम कितनी दफा आए, इधर भी आए, बाबा अभी धक्के मार के बाहर निकाल दिए। दूसरी जानिब हुकाम का मौकिफ है कि इंदराज का अमल ताखीर का शिकार है, जिसके बाइस अकसाद की अदायगी मुमकिन नहीं हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान का हम दाखिली और खारिजी रास्ता अंधेरे में डूब गया। अली टाउन रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से हादसा बढ़ने लगे। शहरी कहते हैं ये शहर की अहम और मशहूर सड़क है, लेकिन इंतजामिया को कोई परवाह नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन मलिक से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, रात के औकात में जहां एक जानिब स्ट्रीट लाइट से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो शहरा टूट फूट का शिकार हैं और उन्हीं पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं या वहां पर नाकारे हैं, तो वहां पर गुजरते हुए शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त हम अली टाउन की मेन शाहरा पर मौजूद हैं, जो मुल्तान की एक मेन शाहरा भी कंसिडर की जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है यहाँ पर इस रोड की, यह है कि इस रोड पर ना ही मुकम्मल तौर पर जो कारपेट है वो किया गया है। अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने के वजह से शहरियों को शदीद परेशानी, दुश्वारी और दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जो यहाँ से गुजरते हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी जानिब से ये अपील और मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस रोड को कारपेटेड भी करे, उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें भी फाल करे और जिन पोल्स पर नस्ब करनी है उन पर नई स्ट्रीट लाइट भी नस्ब करे, ताकि यहाँ के शहरी जो हैं वो अपने आप को सेफ भी कंसिडर कर सकें और इसके साथ साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हादसात हैं जो बढ़ रहे हैं वो भी इस रोड पर कम से कम हों। हसन मलिक मुल्तान इंतजामिया की गफलत बारे अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान सब्जी मंडी के दाखिली गेट पर तजावुजात की भरमार है। तजावुजात की वजह से मंडी में दाखिला मुश्किल हो गया। तजावुजात माफिया ने मनमानी करते हुए सड़क के ऊपर ही सामान उतारा हुआ है। मजीद अहवाल फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान सब्जी मंडी का दाखिली गेट तजावजात की वजह से बंद हो गया। तजावजात माफिया ने मनमानी करते हुए रोड के ऊपर ही सामान उतार लिया, जबकि सड़क के दूसरी जानिब रेडी बांध का बिजुए बैठे हैं। खरीदारी करने आए शहरियों ने मार्केट कमेटी को कसूरवार ठहरा दिया। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में तजावजात की वजह से घंटों रश में फंस जाते हैं। सारे के सारे परेशान है। जिस तरीके से आज रेडियाँ लगी हुई, इस तरीके से साइडों पे रेडियाँ लगे तो अच्छा है, बीच में लगा देते हैं रेडियाँ तो उसके बीच में सारों को तंगी है, सब परेशान होते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मार्केट कमेटी की गफलत के बाइस आने जाने में मसला होता है। तमाम ऑपरेशन चंद दिन के और दिखावे के होते हैं। ये बिल्कुल जरूर तंगी होती है, बड़ी मुश्किलात से आना पड़ता है और जाना पड़ता है। ये कहाँ कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहने वाला इनको कि आगे करें या पीछे करें, ये अपनी मर्जी से आते हैं। आरती जहाँ दिल कहे वहाँ बोली लगा देते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी में मुस्तकिल बयास अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन पहली मरतबा बायोमेट्रिक बुनियादों पर होंगे। सदर हाईकोर्ट बार नदीम इकबाल चौधरी कहते हैं कि अब वकला को हाईकोर्ट बार के इलेक्शन नताइज के लिए रात गए तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के वकला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह बायोमेट्रिक बुनियाद पर होंगे। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नदीम इकबाल चौधरी कहते हैं कि इंतखाबात के नताइज के लिए रात देर गए तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हम बड़े टाइम से महसूस कर रहे थे
کہ جب ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوتا ہے تو آل اراؤنڈ دی ڈویژن ہمارے معزز وکلا صاحبان تشریف لاتے ہیں اور جن کی تعداد ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس مرتبہ بھی جو آخری ووٹر لسٹ تھی ایلیجیبل ووٹرز کی وہ تقریباً 5300 تھی. اور اس کے بعد جب الیکشن کے نتائج کو متعین کیا جاتا ہے تو کاؤنٹنگ کے لیے رات طویل لیٹ نائٹ تک بیٹھنا پڑتا ہے اور ایک کیاؤس جو ہے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بار کے سینئر وکلا نے کہا جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگی ضروری ہے. الیکشن میں دھاندلی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور ووٹوں کے مسترد ہونے کی شرح میں بھی کمی آئے گی جو خوش آئند ہے. وکلا نے بایو میٹرک الیکشن کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور انتخابات سے پہلے اس پروسیس کو مکمل کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر روہی. ڈیرہ غازی خان شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن. ضلع انتظامیہ نے ٹریفک چوک کے بعد پل گھاٹ پر بھی باقاعدہ ریڑھی بازار قائم کر دیا. انتظامی کاوشوں سے نہ صرف ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی بلکہ ریڑھی بانوں کو بھی مستقل جگہ میسر آ گئی ہے. آشان بخاری کی رپورٹ دیکھیے. ڈیرہ غازی خان میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. ٹریفک چوک کے بعد اب پل ڈاٹ کے مقام پر بھی باقاعدہ ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا. ریڑھی بازار کے قیام سے جہاں سڑکیں کھل گئی ہیں وہیں شہریوں کو آمد و رفت میں بھی آسانی ہو رہی ہے. ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل تجاوزات کے نام پر انہیں جرمانوں، سامان ضبط ہونے اور بار بار ہٹائے جانے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تاہم اب متبادل جگہ ملنے سے ان کی مشکلات میں واضح کمی آئی ہے. ریڑھی بانوں نے وزیر اعلیٰ اور ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریڑھی بازار سے نہ صرف روزگار محفوظ ہوا بلکہ شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک نظام میں بھی بہتری آئی ہے. ہمیں ایک شہر دے دیا ان لوگوں نے، مریم صاحبہ نے، اس کی بہت بڑا احسان، اس کی مہربانی ہے. غریب کو ایک جگہ دے دی ہے، ورنہ ہمیں پیران والے کبھی یہاں بگاتے تھے کبھی وہاں بگاتے تھے، ہمارا نقصان ہوتا تھا بہت. انتظامیہ ایک طرف ریڑھی بازار قائم کر رہی ہے تو دوسری طرف تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. کیمرامین محمد عمر کے ساتھ آشان بخاری، روہی، ڈی جی خان. ادھر لیا توسا پل کی تعمیر مکمل ہونے کے باوجود اپروچ روڈ کی عدم دستیابی شہریوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن رہی ہے. تاہم حکومتی عدم دلچسپی کے بعد اب شہریوں نے خود میدان میں آ کر اپنے مسئلے کا حل نکال لیا ہے. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپروچ روڈ تعمیر کر کے دونوں اضلاع کے درمیان آمد و رفت بحال کر دی ہے. زاہد سرفراز کی رپورٹ دیکھیے. ضلع لیا اور توسا کے درمیان تعمیر کیے گئے پل کو مکمل ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں مگر تاحال دونوں اطراف اپروچ روڈز تعمیر نہ ہو سکیں جس کے باعث پل عملاً بے فائدہ بنا ہوا تھا. حکومت کی جانب سے عملی اقدام نہ ہونے پر شہریوں نے خود ہی اپروچ روڈ بنانے کا بیڑا اٹھا لیا. مقامی سماجی شخصیت شبیر جروار اور دیگر شہریوں کی کوششوں سے کثیر رقم اپنی جیب سے خرچ کی گئی اور کئی ہفتوں کی محنت کے بعد ضلع توسا سے لیا پل کی جانب راستہ ہموار کر لیا گیا. راستہ مکمل ہونے کے بعد لیا اور توسا اضلاع کے شہریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ راستہ وقتی حل ہے، اب حکومت ساتھ دے اور اس کچے راستے پر سڑک بنا کر سہولیات فراہم کرے. ساری عوام خوش ہے. پہلے ایسا فیس 1 کی تھا، یہ سامنے کیمرہ مین دکھا سکے فیس 1 ہوا، بلا فیس 2 ہے کی طرح سے. سارے نواز شریف صاحب عمل ہے یہ افتتاح کی تی پول دا 7 سال تھی گئے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. ہوں انہوں دے بھائی وزیر اعظم یہ ہے NHA دا پروگرام تے اپنی مدد آپ دیتا ہے. جروار صاحب جڑا کام کیتا ہے تھوڑے سامنے میڈیا دے. شہریوں کا کہنا تھا کہ راستے بحال ہونے سے لیا اور توسا کے درمیان 120 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو گیا ہے. شہریوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت اپروچ روڈ کی تعمیر ایک مثال ہے مگر بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت شہریوں کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کب عملی اقدام اٹھاتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا. روہی کی نشاندہی پر انتظامیہ متحرک کلمہ پارک کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری. کلمہ پارک میں جدید لائٹنگ نصب پارک رات کے وقت جگمگا اٹھا. مزید جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے. جی عمران، آگاہ کیجیے. جی بالکل، علی پور کے اکلوتے پارک کلمہ پارک کی جو تزئین و آرائش ہے اس کا کام جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر علی پور نعمان محمود رانا کی جانب سے جو ہے پارک میں اس وقت جو ہے روشنی کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے گراسی پلاٹ اور مختلف جو پھولدار جو خوشبودار پودے ہیں اس کی بھی شجر کاری کی گئی اور اس وقت رات کے اوقات بھی یہاں پر جو ہے پارک میں کام ہو رہا ہے. صاف ستھرا پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. اسسٹنٹ کمشنر علی پور نعمان محمود رانا موجود ہیں. سر، علی پور کا اکلوتا پارک تھا، متعدد بار روہی نے بھی اس حوالے سے جو ہے اس کی خستہ حالی کے حوالے سے جو ہے
आवाज़ उठाई और आपकी पोस्टिंग के बाद जब आप तैनात हुए और उसके बाद जो है इस बार की जो हालत है उसमें बेहतरी आनी शुरू हुई। और आज जो देखा है लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है, ये कलमा सैंपल है जो इस पर भी जो है वो लाइटिंग कर दी गई और चारों तरफ मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त जो है चारों तरफ जो है मुख्तलिफ काम की जो है लाइटिंग जो है वो लगाई जा रही है। और शहरियों की जानिब से जो है असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर नुमान महमूद राना के इस ऐसे इकदाम को जो है खूब सराहा जा रहा है। सर क्या कहेंगे और इसमें मजीद जो है आने वाले दिनों में क्या इनिशिएटिव लिया जाए? जी बिल्कुल, जो सीएम पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत हैं कि शहरों को खूबसूरत किया जाए, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम अच्छे से अच्छा किया जाए, तो उसी सिलसिले में ये कोशिश की गई है कि जो ऐसे पब्लिक पार्क्स हैं, ऐसी जगह हैं जिनको ब्यूटीफाई किया जा सकता है या लाइटिंग की जा सकती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग की जाए। और अभी हम इस सिलसिले में थोड़ा विजिट कर रहे थे कि मज़ीद यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद यहाँ पे लाइटिंग होगी और यहाँ पे जो पार्क्स हैं उनको उसी हिसाब से बहाल किया जाएगा ताकि यहाँ पे फैमिलीज आएँ, लोग आएँ, तो उस लाइटिंग और ब्यूटिफिकेशन की वजह से शहर की खूबसूरती भी बढ़े और लोगों को भी एक अच्छी जगह मुहैया की जा सके। जी बिल्कुल, शहर की खूबसूरती भी में भी इजाफा और उसके साथ साथ लोगों को, आम शहरियों को जो है वो भी एक अच्छा तफरीगाह जो है उसका हसूल मुमकिन हो सके। इस सिलसिले में पार्क में जो है वो काम किया जा रहा है और इसमें जो है तमाम तरह जो सहूलियात हैं, यहाँ पर जो है बेंच जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा बाउंड्री वाल जो है वो फूलों के जरिए जो है वो जो है लगा दी गई और उसके साथ साथ रोशनी के लिए यहाँ पर जो है बेहतरीन जो है चरागा किया जा रहा है। और शहरियों की जानिब से सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर राणा नुमान महमूद की काविशों को खूब। बहुत शुक्रिया इमरान सईदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि डीएसपी सर्कल मेलसी चौधरी सईद अहमद की थाना गड़ा मोड़ आमद सहाफ़ियों से मुलाकात, इलाके में अमन अमान के क़याम पर इत्तेफाक किया। पुलिस और सहाफ़ी मुआशरे में अमन शफाफियत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। मुस्बत और जिम्मेदार सहाफ़त के जरिए अमन अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पुलिस और सहाफ़ियों ने मिलकर इलाके में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया। हारूनाबाद में अवामी प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर और सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी समेत वकला बरादरी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर खोखर थे। डॉक्टर्स और सहाफ़ियों समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। मुल्तान में किताब बीनी के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर आ गई। शहर में तारीखी म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 100 साला कदीम लाइब्रेरी को उसके असल तर्ज तामीर के मुताबिक बहाल किया जा रहा है। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की तारीखी म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी। 100 साला कदीम लाइब्रेरी को इसके असल तर्ज तामीर के मुताबिक बहाल किया जा रहा है, जिसकी निगरानी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कर रही है। लाइब्रेरी की छत पर वाटर प्रूफिंग जबकि दीवारों पर सीलिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वॉल्ड सिटी ने इसका जब टेकअप किया, इसकी बड़ी मखदूश किस्म की हालत थी, इसमें जो है फर्नीचर जो है वो टूटा हुआ था। तो अब आपने देखा होगा कि इसकी सीलिंग जो है वो बना दी गई है और इसके जो फर्श हैं उसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो बाहर से जो आपका पॉइंटिंग है वो भी कर दी गई है। इसकी वाटर प्रूफिंग की गई है छत की और इसको जो है वो क्या कहते हैं उसको वेट कम किया गया है छत का। बहाली के इस मंसूबे का मकसद तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी उमैर गजनफर का कहना है कि किताब बीनी के शौक को दोबारा जिंदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि लाइब्रेरीज पर तवज्जो दिए बगैर तालीमी शऊर को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। इसके अंदर जो है वो डिजिटल सिटिंग का निज़ाम बनाया जा रहा है ताकि जो रीडर्स हैं, जो बुक रीडिंग करने का शौक़ रखते हैं, जो कि शौक़ ख़त्म होता जा रहा है, उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह ये 3 से 4 महीने में जो रीडर्स के लिए खुशखबरी है कि वो एक अच्छी जगह पर बैठकर, अच्छे माहौल में बैठकर जो है वो बुक रीडिंग का जो शौक़ है वो पूरा कर सकेंगे। उमैर गजनफर का कहना था कि 3 से 4 माह के अंदर म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी को रीडर्स के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जहां तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जदीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान।